Hi, I'm Manoj Devnath. I am from Assam. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. I've got that lightning inside me, this is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable, a new animal. This is how legends are made. This is how legends are made. Six people, still not happening. Good morning, everyone, and welcome to Bulldog Arm Wrestling Talk Show, a series of sessions with some of the finest athletes from the industry. And my dear friends, let us know about these athletes' passion, their journey, and their struggle, the challenges, lots more in our show. We call it Bulldog Arm Wrestling Hot Talk. I'm your host, EJ Uji, and guys, I'm going to be taking you guys down to the journey by bringing in some of the finest athletes from the industry, our industry, that is the Indian arm wrestling, and let us know about the journey and their days ahead. Today, joining us, ladies and gentlemen, is our very dear friend and definitely an athlete who needs no introduction if you are in the sport in India. Ranked currently number 2 in the URPA World Ranking Series, silver medalist champion in China Open Arm Wrestling Championship, national champion 2014, has been participating and traveling the world, representing India currently in 7 countries, silver medalist in Indo-Pak Arm Wrestling Championship Series, and many more. इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, but the Indian industry knows him. He is the crusher. And ladies and gentlemen, थोड़ी तालियां हो जाएं. Let's welcome our very dear friend, Manoj Devnath, the crusher. Hello, Manoj. How are you? Hi sir, thank you so much. I'm doing good. I How are think you, मेरे को sir? लग रहा था मेरे को लग रहा था कि आप हम आपके लिए वेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक आप जिम में होंगे. हम ऐसे सोच रहे हैं आपकी होम जिम में आप अपने आर्म्स तो हमें हमको दिख रहे हैं. You must be having a good exercise, I believe. How are you, Manoj? Sir, everything is good. Nothing much to do in these days. I know, I know. अभी तो लॉकडाउन खुल चुका है. I'm sure now you must be getting your opportunity to, at least give your routine a good life. No sir, lockdown खुला है, but gyms and all everything is closed. So Okay, जो होता है I कुछ नहीं know. मैंने sir. Yeah. I know, I understand. Okay, fantastic. So, Manoj, first of all, congratulations for your amazing journey that you have. And, you know, I have become a fan of this sport definitely by listening to your story, watching you live, and,
you have been definitely a true inspiration. जो एटीट्यूड आपके अंदर है वो इट्स लाइक काबिल तारीफ. Thank मनोज, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. आई एम श्योर coming days lot of people would like to know कि who is Manoj Devnath, and I'm sure हम हमारे friends and family, हमारे community को at least we like to share some parts of your journey in life in terms of the making of Manoj Devnath. So we like to know how is your journey, as in today. Also we like to know कि कैसे शुरुआत हुई आपकी ये journey into the world of arm wrestling. Okay. Actually, I am from Dibrugarh, Assam. It's a small city in the Assam, and it's known as tea city of India. तो आसाम में क्या होता है, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आर्म रेसलिंग इवेंट होता है ड्यूरिंग एनुअल स्पोर्ट्स डे. तो ऐसे ही लाइक मैं जब क्लास 12 में था, फर्स्ट टाइम देखा था ऐसे आर्म रेसलिंग होता है. तो ऐसे ही मैं रैंडमली पार्टिसिपेट किया था. तो एक बाउट जीता था शायद. उसके बाद अच्छा लगा वो गेम देख के कुछ. तो मुझे पता नहीं चला कैसे जो चैंपियन हुआ था उस टाइम की कॉलेज में, मैं जहाँ से था, RDHS के कॉमर्स कॉलेज डिब्रूगढ़ का. तो मुझे पता नहीं चला कैसे खेलता है इतना जल्दी, इतना स्पीड मार लेता है, पैर कहाँ रखते हैं, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आया. देन अच्छा लगा वो स्पोर्ट. उसके बाद मैं एक्चुअली छोटा से बचपन से खेल करता था, कुछ भी लाइक पढ़ाई से ज्यादा खेल में इंटरेस्टेड था. देन जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम में डिब्रू कॉलेज में, उस टाइम में जनरल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी था कॉलेज का. तो मुझे सारा स्पोर्ट्स का जितना भी इवेंट है ऑर्गेनाइज वगैरह करना पड़ता है. तो उसके बीच आर्म रेसलिंग भी इवेंट होता है, तो मैं आर्म रेसलिंग भी पार्टिसिपेट किया. एंड आई वाज लाइक 55 kg दैट टाइम में, और लाइट वेट ही था. और जो इवेंट कराने आता है, लाइक ऐसे जज जो आता है, his name is Arup Rajkot. He's from Dibrugarh. He's also international arm wrestler, multiple national champion. So he's my current coach also. तो मैंने पार्टिसिपेट किया, अपना वेट क्लास में चैंपियन मारा. उसके बाद हम लोग क्या होता है आर्म रेसलिंग में, ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियन होता है हर एक वेट क्लास का चैंपियन का बीच में, लाइक 60 kg, 70 kg, 80, 90 ऐसे. तो उसमें भी मैं ओवरऑल चैंपियन मारा एंड आई वाज द लाइट वेट प्लेयर. तो मुझे फील हुआ कि कुछ है, लाइक अच्छा लगा खेल के. देन जो ट्रेनर था, अभी भी ट्रेनर है मेरा जो अरूप राजपूत जो आया था, वो बोला कि अच्छा से प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा खेल पाएगा. तो मैं उनको बोला कुछ छोटा मोटा इवेंट होने से बोलिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे कुछ. तो मुझे कुछ दिन बाद उनको मिला था फिर, तो बोला था कि टीम उम जाते हो कि नहीं. मैं बोला ना, टीम उम जाना नहीं होता है. तो बोला कि इस टीम में इधर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ जाना 1.5 month बाद डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है. तो ऐसे ही शुरुआत हुआ आर्म रेसलिंग का. डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें गोल था. देन डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन मारने के बाद आपको स्टेट खेलना पड़ता है. स्टेट में अगर आप प्लेस मारा फर्स्ट सेकंड, फिर आपको नेशनल जाने मिलते हैं. तो ऐसे ही शुरुआत हुआ. 2014 में मेरा फर्स्ट नेशनल था आगरा में. उसमें मुझे ब्रोंज मेडल मिला था. तो बाद से कंटिन्यू ऐसे ही नेशनल. फिर 2015 से मैं लाइक इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला. तो ऐसी शुरुआत हुआ सर. So Manoj, I'm sure अभी तो आप एक प्रोफेशनल एथलीट बन चुके हैं. You have represented India in national level. You have represented the country, in various sports. Now the good news is you've also become a pro. You're a professional athlete. So I would like to know, and how has been your journey? When I cannot say it's a struggle, but I'm sure it's an emerging sport in the country. But ये sport अभी, the way I see it in last 1 year, has been just growing by 1000%. So how has been your journey before that, to just get a highlight कि कैसा journey रहा है ये? How has been your struggle, and how has been your road to success आज, and how do you feel as of today? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे जितना भी लोग जानता है इस स्पोर्ट के लिए जानता है. तो अच्छा लगता है. मैं इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको ही देता हूँ, क्योंकि आप जब अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो उससे ज्यादा और हैप्पीनेस कुछ नहीं होता है सर. तो ऐसे हम लोग के इंडिया में देखा जाए तो क्रिकेट छोड़ के ज्यादा इवेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है. लाइक एथलीट को कुछ नहीं मिलता है क्रिकेट छोड़ के. अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट भी है, ओलंपिक स्पोर्ट भी है, बहुत फ्रेंच लोग है जो टेबल टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है.
नेशनल चैंपियन मानने के बाद भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जाने नहीं मिलता वर्ल्ड में, स्पॉन्सर नहीं रहता है उनका पास, कोई सपोर्ट नहीं रहता है, तो स्ट्रगल बहुत है, लेकिन उसका बीच में उससे ज्यादा हैप्पीनेस कुछ नहीं रहता। आप जब आपका कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, बाहर जाके खेलता है, बिल्कुल वही बिल्कुल। एक चीज जो मोटिवेट करता है। और एक चीज क्या है, आप जैसे भी फॉर एग्जांपल नेशनल चैंपियन हमारा, आप बाहर जाके खेलते हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको भी जितना भी यंग जनरेशन है, छोटा लोग है, तो आपको भी फॉलो करता है, आपसे बहुत कुछ सीखता है। और जैसे मैं भी इंडिया में बहुत सारा सीनियर एथलीट है, उनसे बहुत कुछ अभी भी सीखता हूँ। तो स्ट्रगल तो रहता है हर एक स्पोर्ट में, लाइक, लेकिन उसका भी अगर अगर बट मतलब बट एज अ स्पोर्ट आई एम श्योर बोलते हैं ना कि एक सक्सेस ऑफ अ athlete or a success of a story depends on lot of partnerships, associations and एक contribution रहता है हर एक element का एक आदमी को एक story और एक success phenomena बनाने के लिए। तो what do you think has been the contribution? आपको लगता है कि हमारे फेडरेशंस जो इंडियन फेडरेशंस हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रांड्स हैं, हैव यू रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट contribution or is it just a normal way of just doing something for the sake of doing? मतलब what is your views on this? See, Indian Arm Wrestling Federation, in 43 years they're running federation, and to be frank, I didn't get any support from federation. Whatever support I get from my district. Like, there are many people who supported me when I represented India's 2015 that time onward, and there are many people in Assam, and they support me whenever I travel, whenever I go for championship. So I find sponsorship through them. And federation क्या होता है arm wrestling में, whenever you represented India, so you need to give money to federation, like you need to pay a certain amount, like for your expenses. Oh, so मतलब अगर आप इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट भी करें तो you'll have to pay something to the Of course, federation to participate? you need to manage your all the expenses, travel and everything. So it depend upon you. You'll get the selection letter from federation. Then you need to manage your like sponsorship and all. If you get sponsorship, then well, you can travel. If you didn't get sponsorship, then you can go. So it's like that. Not only arm wrestling. There are few more sports in the country, even Olympic recognized sport. So where athletes need to manage their sponsorship. हाँ, वो And तो बिल्कुल सही है। Yes, I agree with you. But in the yeah. same time, is it only on a state level or city level or a district level, or this is a series of formalities that सारे athlete को करना पड़ता है हर एक level पे? एक्चुअली क्या होता है, लाइक आर्म रेसलिंग, तो जैसे मान लीजिए आप स्टेट चैंपियनशिप का बाद स्टेट चैंपियनशिप में जाता है, तो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टेट चैंपियनशिप में एथलेट को भेजने का। जब आप नेशनल में जाता है, उसमें क्या होता है, स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेशनल में भेजने के लिए। लेकिन बहुत सारा स्टेट है जो काफी एक्टिव है आर्म रेसलिंग में, काफी फेमस है, रिकॉग्नाइज है उनका। जैसे केरला ले लीजिए, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, उनके एथलीट को सपोर्ट करता है, नेशनल जाने से भी ट्रैवलिंग एंड ऑल एवरीथिंग वो लोग प्रोवाइड करता है। इवन वो लोग को स्कॉलरशिप भी मिलने लगा है अभी। तो ऐसे, लेकिन Okay. बहुत सारे स्टेट है जो कि पता नहीं फेडरेशन कैसे चलाता है, बट उसमें क्या होता है, एथलीट से कलेक्ट करता है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर नेशनल जाना है, जैसे बहुत सारे स्टेट है, इवन मैं अपना स्टेट का बात कर रहा हूँ, असम में फेडरेशन काफी पुराना है, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन का अंदर का जो है। तो अभी सबको पता है इंडिया में, लाइक आईएफ का अलावा, आईएफ डब्ल्यूएफसी वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन से रिकॉग्नाइज है, उसके अलावा अभी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म रेसलिंग का अंडर में जैसे बीसीएआई है, न्यूली फॉर्म फेडरेशन। तो उसमें आईएफ का बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, आपको हम लोग को नेशनल जाना होता है, तो स्टेट ऑर्गेनाइजर को, जो स्टेट का रहता है फेडरेशन को, उनको देना बिल्कुल। पड़ता है, वो लोग कलेक्ट करते हैं। पता नहीं उनको फंड, तो ऑब्वियसली अगर आप इतना साल से फेडरेशन चला रहा है, तो आपको ऑब्वियसली एथलेट को अपना
स्टेट का 15-20 एथलीट को नेशनल में भेजने के लिए तो रहना चाहिए फंड, क्योंकि इतना बड़ा लोग जोड़ा देता है फेडरेशन में। देखिए ना, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का सपोर्ट नहीं है। वो बात हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन फेडरेशन बताता है अभी तो नहीं मिल रहा है उनको कुछ सपोर्ट। शायद हो सकता है नहीं मिलता है, लेकिन जैसे स्टेट में रहता है, आपका एक स्टेट फेडरेशन है, आप अगर किसी को भी कोई भी गवर्नमेंट का पास जाने से, इवन गवर्नमेंट से अगर नहीं भी मिला तो बहुत लोग हैं जो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिलता है एथलीट को भेजने, तो उससे भेज सकता है। तो एथलीट से पैसा कलेक्ट करना आई डोंट थिंक कि फेयर होता है आपको नहीं। Okay, so we are back. Friends, I'm so sorry. There have been, I think it's a technical glitch, bad weather in Bangalore. But having said that, we are back again for the hard talk with our guest for the day, a super crusher, Manoj Devnath. Manoj, can you hear us now? Yeah, I hear you, sir. Oh, fantastic, Manoj. So, as we wish to again revisit on the question, तो आप बता रहे थे हमें कि the journey of challenges that you are facing. तो मेरे हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई एथलीट अगर even after giving away all the registration fee, application fees, how is the whole experience for you? Everything is good. Like actually, they're promoting arm wrestling. Whatever federation doing, they're promoting arm wrestling. But in the same time, प्रेशर नहीं आना चाहिए एथलीट का ऊपर कि मुझे अगर नेशनल में जाना है तो, क्योंकि बहुत सारा एथलीट होता है जो स्टूडेंट्स रहता है, तो पेरेंट्स से जितना पॉकेट मनी एंड ऑल मिलता है सेविंग्स करके उनका पढ़ाई का पीछे लगाता है। तो ऐसे प्रेशर नहीं आना चाहिए एथलीट का ऊपर कि जो भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई 11-12 में पढ़ता है या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उनको जो भी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलता है वो क्या करता है अपना डाइट का ऊपर लगाता है ताकि उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, राइट। तो ऐसे प्रेशर नहीं आना चाहिए एथलीट का ऊपर। ऐसे बहुत बार हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करने के लिए फिर बैंगलोर आया था, तो व्हेनेवर देयर इज नेशनल चैंपियनशिप आई ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू डायरेक्ट दैट प्लेस। So for that also I need to take permission from Assam State Association. So after that क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। नागपुर में जाना था 2016 में, नेशनल चैंपियन था। तो पूरा असम टीम का लाइक मीटिंग होता है ट्रैवल करने का पहले, नेशनल का पहले। मीटिंग के बाद टीम एक साथ, जैसे मान लीजिए गुवाहाटी से ट्रेन रहता है, निकलते हैं नेशनल के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट रहता है जो असम को रिप्रेजेंट करता है, बाहर रहता है। फॉर एग्जांपल मेरा बात बता रहा हूँ, 2016 नागपुर का चैंपियनशिप था, तो सारा एथलीट से 3,900 या ऐसे कुछ स्टेट को देने बोला है। तो आप जस्ट गेस कीजिए, मैनेजिंग 4,000 इज नॉट इजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, राइट। तो देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से जा रहा हूँ, बैंगलोर से जा रहा हूँ डायरेक्ट नागपुर में, परमिशन लिया, मुझे भी भरना पड़ा वो फीस। तो फीस किसके लिए कलेक्ट करता है, अपनी किट के लिए बताता है कि किट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह और आपका ट्रैवल के लिए। तो मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ टीम का साथ, तो उस हिसाब से तो नहीं देना चाहिए टोटल अमाउंट, राइट। तो मैं इधर से फ्लाइट लेके गया या जैसे भी गया, मान लीजिए बैंगलोर से नागपुर, तो वो एक्स्ट्रा ऊपर से एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपको स्टेट में भी देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज रहता है जो ध्यान देने चाहिए फेडरेशन को, जो सही नहीं है। तो यही सब चीज। करेक्ट। मनोज, आई एम श्योर मेरे सीरीज का जो नाम है वो है हार्ड टॉक, एंड आई एम श्योर द आइडिया बिहाइंड दिस इज नॉट ओनली टू जस्ट give hard facts, but also, we should be inspirational series of sessions for the upcoming athletes. Just to understand now, Abhi, what do you feel about this entry of federations that are coming new who want to, uplift the face of the sport? I'd like to know how is your journey with Bulldog Arm Wrestling? Bulldog is doing great job since 2017. So first उनका इवेंट क्या था,
आर्म रेसलिंग शोडाउन बैंगलोर में। उसके बाद जैसे लाइक पहल का साथ सब लोग जानते हैं, जो भी आर्म रेसलिंग के साथ जुड़ा है, पहले इज द बिगेस्ट नेम इन आर्म रेसलिंग और प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग इन द वर्ल्ड। प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग जो है उनका साथ टाई अप हुआ बुलडॉग का। तो उसका हिसाब से वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज शुरू हुआ, यूआरपीए जो है उसका थ्रू से आपको आप रैंकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी बुलडॉग क्या था, पहले क्या था, एक जस्ट ऑर्गेनाइजर था। अभी बुलडॉग क्या है, दे आर पार्टनर ऑफ प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग। तो किसी को भी प्रोफेशनली कोई भी इवेंट खेलना है तो इससे चालू कर सकते हैं बुलडॉग का साथ जुड़ के। तो जैसे सबको पता है आर्म रेसलिंग में वर्ल्ड वर्ल्ड फेडरेशन भी स्प्लिट हो गया दो हिस्से में से, कुछ लोग का था इंटरनल इशू। तो पहल का साथ जो टाई अप था वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन का अभी नहीं है। तो ऐसे वर्ल्ड में जैसे दो फेडरेशन हुआ और इंडिया में भी बीसीए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर आर्म रेसलिंग इन इंडिया शुरू हुआ। तो आई होप कि अभी प्लेयर को नया रूप देखने मिलेगा आर्म रेसलिंग को इंडिया में। जैसे फर्स्ट नेशनल हुआ था बीसीआई का दिल्ली में। तो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आप अगर जो भी नेशनल खेलने जाता है इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में, हम लोग इतने साल से खेलता था, तो फेडरेशन को ऑलवेज मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि फेडरेशन के लिए प्लेयर एक का नाम होता है, प्लेयर को जानता है। जैसे मान लीजिए इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में मैं 2016, 17, 18 कंटिन्यू गोल्ड मेडल मारा अपना वेट क्लास में। उसका 14, 15 मेरा ब्रोंज था। उसके बाद कंटिन्यू गोल्ड मेडल था मेरा वेट क्लास में, सीनियर मैन 55 केजी 60 केजी में। तो 18 तक पार्टिसिपेट किया होता है। एक्सपीरियंस क्या रहता है, आप मान लीजिए मैक्सिमम जो नेशनल होता है हम लोग का नॉर्थ साइड में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मई जून का बीच में होता है। जैसे आप दिल्ली नागपुर ऐसे जगह में वेदर 40 प्लस 45 ऐसे रहता है। तो उधर क्या होता है, जो भी एथलीट रहता है, मैं एक ट्रू स्टोरी है, सबको पता है। एथलीट एक जाता है मेहनत करके पूरा साल, जाने के बाद उनको क्या चाहिए, इवेंट में जाने के बाद फूड एंड प्रॉपर रहने का इंतजाम चाहिए उनको। ये दो बेसिक चीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है एथलीट के लिए। हम लोग जब नेशनल जाते हैं, जाने के बाद हम लोग का, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करता है। मैं समझता हूँ उनका भी बहुत प्रेशर रहता है, 700 800 एथलीट को मेंटेन करना, मोर देन 500 एथलीट को मेंटेन करना। लेकिन द मेन टाइम आप अगर 45 डिग्री ऐसे कोई प्लेस में है, बहुत सारा एथलीट नॉर्थ ईस्ट साइड से आता है जिधर वेदर काफी सही रहता है, इतना गर्मी वगैरह नहीं रहता है। तो आप अगर यूपी दिल्ली ऐसे जगह में मोर देन 45 डिग्री में आप अगर रहने के लिए नीचे लाइक कुछ गद्दा डाल के दे दिया एथलीट को रहने के लिए, और पंखा भी बराबर नहीं है, ऐसे नहीं रहता है, तो बहुत मुश्किल रहता है। तो इस सब चीज फेडरेशन को ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ लास्ट जो बीसीआई का नेशनल हुआ था दिल्ली में हुआ था, उसमें क्या हुआ, सारा एथलीट को रहने के लिए एसी रूम प्रोवाइड किया गया, हर एक एथलीट को जितना भी पार्टिसिपेंट था। तो ये नया नया चीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे बीसीआई ने, काफी अच्छा है एथलीट के लिए। और ऐसे ही होना चाहिए, एक एथलीट को रहना खाना जब भी नेशनल जाता है प्रॉपर टेक केयर करना चाहिए, जो भी फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है। बट मनोज, आप मुझे ये बताइए, अभी इंडिया अगर आप देखा जाए तो इतना बड़ा कंट्री है, या ये स्पोर्ट तो एक कॉमन स्पोर्ट है, इसमें केवल स्ट्रेंथ और एक एटीट्यूड का अप्रोच है। बट अभी आने वाले दिनों में मैं जैसे जैसे सारे कॉम्पिटिशन है, मैं भी जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोग अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करते हैं, अपने किड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हमारे फेडरेशन जो बने हुए हैं, नेशनल फेडरेशन, अगर ये लोग अगर इन चीजों को नहीं समझे तो डू यू थिंक ऑल दीज न्यू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आ रही हैं अभी अपने कॉन्सेप्ट को लेके, अपने सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन्स को लेके, डोंट यू थिंक अभी उन लोग को रियलाइज होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट एक फाउंडेशन स्ट्रांग बने, एक न्यू रेजोल्यूशन बने, एक प्लान बने,
so that everybody in the sport grows? Because I'm sure sports का upliftment, career upliftment होते हैं athletes के लिए. What do you feel? एग्जैक्टली फेडरेशन को ये चीज समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एथलीट अगर तैयारी करता है कोई भी बड़ा इवेंट के लिए, नेशनल इवेंट के लिए, तो बिफोर 2-3 मंथ ही नीड टू बी वेरी सीरियस विथ हिज ट्रेनिंग एंड विथ हिज डाइट। तो डाइट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है, प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ता है आपको। और आर्म रेसलिंग ऐसा नहीं कि आप जस्ट प्रैक्टिस कर लिया आपको हो गया। एक नेशनल चैंपियन बनने के लिए आपको टॉप बनने के लिए कंट्री का अंदर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मान लीजिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन आपके पास डाइट नहीं है प्रॉपर, तो जिस हिसाब से होना चाहिए से डेवलप नहीं होता है। तो ऐसे बहुत प्लेयर का साथ होता है, बहुत एथलीट का साथ होता है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड आर्म रेसलर है इंडिया में। आप देखें तो केरला, पंजाब, हरियाणा, असम, नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत अच्छा एथलीट है, लेकिन उनको सपोर्ट की कमी के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं लाइक बिलीव करता हूँ अगर फेडरेशन आगे आए न्यूट्रिशन ब्रांड के साथ एथलीट को सपोर्ट करने के लिए, तो प्लेयर और भी आगे जा सकते हैं। इसीलिए आर्म रेसलिंग में देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड लेवल में बहुत पीछे, बहुत पीछे। बिल्कुल, तो बिल्कुल. कोई लेवल नहीं है वर्ल्ड में अगर चाहता है तो। वही आप देखें तो रशिया, कजाकिस्तान एंड ऑल, उधर क्या होता है एक एथलीट को आप अगर नेशनल चैंपियन है तो आपको सपोर्ट मिलने लगता है, स्कॉलरशिप मिलने लगता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज है जो फेडरेशन को, जो भी फेडरेशन है एक साथ मिलके काम करना चाहिए एथलीट के लिए एटलीस्ट, अपना बेनिफिट छोड़ के, तभी एथलीट आगे जा पाएगा। बिल्कुल. मुझे बताइए BCI में अभी आप you are a part of it and in link they are in part of lot of international arm wrestling partnerships. How do you see your future? Like how excited are you about your journey? अभी आपको लगता है कि you have a way, you have a path where you can see yourself making this full time as a profession? I just want to mention here, like I think 2018 January or February, Indian Arm Wrestling Federation President Hashim Reza, he introduced me with Mr. Ronnie Sehgal, who is the CEO of Bulldog Arm Wrestling, founder of Bulldog Arm Wrestling. तो मैं अभी मुझे फील होता है वही बेस्ट डे था मेरे लिए, जिस दिन मुझे इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट ने मिस्टर रॉनी सेगल से इंट्रोड्यूस करा दिया था। उसके बाद मैं लाइक पर्सनली भी थोड़ा अलग से सोचने लगा हूँ इस स्पोर्ट के लिए। पहले ऐसे नहीं था कि कुछ हो सकता है, बट अभी जैसे प्लानिंग है बुलडॉग आर्म रेसलिंग का फॉर इंडियन एथलीट, उनको ग्रो करने के लिए, तो बहुत बहुत सही है। इसमें क्या है, बहुत सारा प्लान है। अभी 2020 में बहुत सारा प्लान था, बहुत बड़ा इवेंट का बुलडॉग आर्म रेसलिंग का, जिसमें हर एक एथलीट को एटलीस्ट लाइक 40-50 इंडियन आर्म रेसलर का फ्यूचर थोड़ा अलग होता रहा। तो अभी एक कोविड-19 के लिए थोड़ा पॉज है, बट डेफिनेटली बिल्कुल, आई एम बिल्कुल. 2019 बिल्कुल. इनफैक्ट मुझे पता चला है का तो एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स कैलेंडर भी निकल रहा है जिसमें कि आपके केवल इंडियन स्टेट्स में कंपटीशन नहीं, बट ये सारे जो विनिंग एथलीट्स हैं इन लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है. आई बिलीव दे विल बी रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एंड विजिट फ्यू कंट्रीज. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर में आप लोगों का एक फ्लोरिडा में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है. So, how do you see that ये path जो Bulldog Arm Wrestling जो बना रही है under the umbrella of BCI and many more other partnerships, do you think it's good for the athlete? Exactly, it's very good for athlete. I just want to mention that 2018 में मैं 2009 हाँ जी 18 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप तुर्की में गया था। उस टाइम में मैं जो बुलडॉग आर्म रेसलिंग है, तो उन्होंने देखा था मैं मेरे अचीवमेंट एंड ऑल, तो मुझे स्पॉन्सर किया था फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप तुर्की। तो उसका बाद सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे एथलीट है, जैसे मान लीजिए जो बेस्ट एथलीट है उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करता है
तो हमारा जो इंडिया का ओवरऑल चैंपियन है प्रांजित सेठिया, बैंगलोर में जो उर्पा रैंकिंग सीरीज हुआ था, आई थिंक लास्ट 2019 मार्च में, तो पहल का साथ हुआ था प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग का साथ। तो उधर जो ओवरऑल विनर था प्रांजित सेठिया, इज वेरी गुड ऑफिसर फ्रॉम आसाम, उनको सपोर्ट किया था, पूरा स्पॉन्सर किया था बुलडॉग ने फॉर इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। मलेशिया में हुआ था टॉप 8 का साथ। तो ऐसे एथलीट को सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज से और बहुत सारा प्लान है अभी। और मैं जितना तक जानता हूँ बहुत सारा न्यूट्रिशन ब्रेन का साथ भी बीसीआई और बुलडॉग ने मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट इंडिया का टॉप 10 टॉप 15 जो भी एथलीट को न्यूट्रिशन का सपोर्ट मिल पाए। तो काफी सारा Very प्लान nice. है एथलीट के लिए। बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है इंडिया में। और Very आई nice. बिलीव ऐसे अगर इनिशिएटिव लिया फेडरेशन बुलडॉग और बीसीआई ने, तो ऑब्वियसली हमारा इंडियन आर्म रेसलर भी वर्ल्ड में जाके भी कुछ कर सकता है। वेरी नाइस। मनोज, हमारे इस हार्ट टॉक में थोड़ा एक फन कॉलम भी है, एंड हम जानना चाहते हैं हार्ट फैक्ट्स ऑफ मनोज के पर्सनल लाइफ के डोमेन में, लाइक हाउ इज मनोज इन हिज पर्सनल लाइफ। तो हाउ इज योर लाइफ मनोज? लाइक आई नो शटडाउन है, होम अरेस्ट है, स्टे सेफ है, एंड दीज आर ऑल गुड थिंग्स टू एंश्योर दैट वी ऑल आर healthy and hearty and we add value. So, but then on a personal level, how is your personal life? Any girlfriends? नॉट Girlfriends? येट। अभी तक Okay, देखो all तो right. आपको ही बताता हूँ सबसे पहले Oh, सर। oh, fantastic, fantastic. And आपका pastime, what do you do during these lockdown? Or what do you do the whole day? हाँ, लॉकडाउन में जैसे अभी 2.5 मंथ से ऐसे ही था, वर्क फ्रॉम होम था, तो घर में ही रहना पड़ता था, बाहर जाना कुछ नहीं होता था। इवन वर्कआउट के लिए कुछ जिम एंड ऑल एवरीथिंग इज क्लोज। तो घर में जितना हो पाता है उतना वेट्स वगैरह जो भी थोड़ा बहुत है वही मैनेज करके Hmm. वो ट्रेनिंग कर लेता रहा। तो वो नया चीज क्या है मनोज, आपने जो सीखा है, जो किया है ड्यूरिंग दीज लॉकडाउन? कुछ नया नया सीखा है, चीज, कुछ किया नया? हाँ ये नया हार्ट तो फैक्ट है ना? एग्जैक्टली कुछ मूवीज एग्जैक्टली। देखी? हाँ, सीरीज वगैरह देख लेता था ऐसे, कुछ भी। इसके अलावा बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घर में ही वर्कआउट करके जो वेट था थोड़ा बहुत, वो कभी भी मैं यूज नहीं किया था, ऐसे ही था। ओके। तो उसी काम चलाना पड़ा। हम्म। और ऐसे आप ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं कर सकते, तो जो खुद कर सकते हैं ऐसे ही बस। मनोज, ऑल्सो कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड फन क्वेश्चंस हैं, लाइक हु आर योर बेस्ट कॉम्पिटिटर्स आपके वेट कैटेगरी में, जिनको आप मतलब कंपटीशन मानते हैं आज की तारीख में? हाँ, इंडिया में सर। इंडिया में डेफिनेटली। बहुत सारा अच्छा एथलेट है। जैसे मैं 50 अभी आपके लिए 50। आपके लिए आपका आपका कौन है वो कंपटीशन जिसके साथ मतलब आपको एक फियर, एक नर्वसनेस रहती है, मतलब आपको पता है अगर आपके साथ इसका कंपटीशन हो जाए पहले तो देयर इज अ फील फैक्टर, हार्ट टॉक, मतलब किसके साथ आपको लगता है कि आपको डर है? देखिए, आप अगर नेशनल में जाते हैं ऑब्वियसली अच्छा तैयारी के साथ जाते हैं, कहीं भी अगर कोई इवेंट में जाता है, तो मैं सोचता नहीं हूँ कौन मेरा वेट क्लास में खेलता है। ऐसे मेरा जो ट्रेनर है वो ऑलवेज एक ही बात मुझे बताया कि ऐसे तैयारी करो कि तुम्हारा बारे में सोचे कि मनोज कौन सा वेट क्लास में खेल रहा है। तो जो भी है प्लेयर हम्म। वो एक प्लेयर ही रहता है, उसका बारे में ज्यादा मत सोचो। मनोज मनोज मनोज, पता है आप क्रशर हैं, बस एनी एनी नेम जिसके साथ आपको लगता है कॉम्पीट करते वक्त, मतलब यू विल हैव योर यू नो मसल्स टू वर्क हार्डर। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारा एथलेट है जैसे लाइट वेट में इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारा अच्छा एथलेट है। जगदीप कुमार है पंजाब से, जैसे आकाश कुमार काफी अच्छा कर रहे हैं, वो है। अजीत लाइट वेट प्लेयर है जो 55-60 में खेलता है। तो बहुत सारे ऐसे एथलेट है, आसाम से भी है बहुत सारे एथलेट जो लोग के साथ खेलने से आपको ध्यान से खेलना पड़ता है, तो काफी अच्छा ट्रेनिंग वगैरह करता है। तो ऐसे माइंड में रहता है ऑलवेज आपको कि ये अच्छा
मनोज आपका माइक 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 यस हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं, जैसे पंजाब से जगदीप हो गया, असम से मनोज भी है। अभी जब आपने वो मैं चाहता था कि आपके मुंह से निकले तो आकाश कुमार और आपका जब भी मैंने देखा है फाइट होता है तो मतलब बवाल हो जाता है मतलब चाहे वो स्टेडियम में हमने देखा है इतने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पे कॉम्पिटिशन में जब भी आकाश और आपका चैंपियनशिप होता है तो मतलब बवाल हो जाता है बट देन as besides the sport how are you guys two doing like do you talk to each other how is your हाँ, relationship how is your एग्जैक्टली friendship एग्जैक्टली, बात तो होते रहता है कभी भी, मान लीजिए। ऐसे नहीं है, हम लोग का जो भी एग्रेशन एंड ऑल रहता है वो सिर्फ टेबल पे रहता है। टेबल का बाद हम लोग सभी एथलेट एक दूसरे का भाई है, अच्छा रिलेशन रहता है। और ऑलवेज जो कि पब्लिक है, कोई ऐसे इवेंट देखना चाहते हैं, जैसे आकाश की अभी वो मुझसे ऊपर का वेट क्लास में खेलता है। तो जैसे वो लास्ट इवेंट में 70 में खेला था और 78 में, तो मैं 63 में खेला था, फिर जाम करके मैं खेला था कि मुझे खेलना है, तो अपना पावर चेक करने के लिए। तो अच्छा लगता है ऑलवेज खेल के, अच्छा प्रैक्टिस करता है, अच्छा एथलेट है। और जो भी हम लोग का रहता है टेबल में ही रहता है, टेबल का बाद हम लोग का रिलेशनशिप है ना, और सही रहता है very सब nice एथलेट के साथ। great मनोज आपके टॉप 5 फेवरेट इंडियन आर्म रेसलिंग पुलर एथलीट्स कौन कौन है अगर आपको मैं मतलब बहुत सारे लोग फेवरेट होंगे बट as per you 2020 आज की तारीख में who are your top 5 favorites सर, इट्स हार्ड टू पिक टॉप 5, बट मैं ऐसे बहुत सारे एथलीट है जिनका नाम लेना चाहता हूँ, वो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया में। इंडियन आर्म रेसलिंग का फेस बन सकता है, ऑलरेडी फेस है इंडियन आर्म रेसलिंग का, लेकिन आगे भी इंटरनेशनल लेवल में भी उनको अच्छा कर सकते हैं इंडिया के लिए। जैसे बहुत सारे एथलीट है, आप असम से मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैं टॉप 5 नहीं बता रहा हूँ, हर एक स्टेट से कोई कोई है जो बहुत अच्छा एथलीट है। तो असम से आप ले लीजिए दीपांकर मेहता, भी फिलहाल जुलोटी टूर में जाके आया, काफी अच्छा खेला, बहुत अच्छा प्लेयर है। दीपांकर, प्रांजीत, अरूप, देवजीत शर्मा, अ, जो लोग ओवरऑल इंडिया का चैंपियन भी रह चुका है, प्रांजीत, देवजीत and all। उसके अलावा केरला से समीर बीती हो गया, फिर ऐसे बहुत लोग हैं। और अभी करेंट देखे तो पार्थ सोनी मुंबई से, काफी अच्छा यंग एथलीट है, काफी अच्छा खेलता है, इंडिया का सीसी भी रह चुका है। जैसे हरियाणा से गुलाब सिंह, नवाब सिंह, पंजाब से मेहंदी गुरी गुरी इकबाल, दिल्ली से संदीप शेरन, ये लोग, रोहित, तो बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा तैयारी भी करता है, ऑलवेज इंडिया के लिए कुछ करने के लिए करते हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत एथलीट है इंडिया में जो अच्छा कर सकते हैं, ऑलवेज ट्रेनिंग पे रहता है ये एथलीट लोग। यूपी से देखिए आकाश कुमार, वो भी काफी अच्छा ट्रेनिंग में रहता है। तो बहुत एथलीट है इंडिया में। मनोज सो आपको लगता है आने वाले दिनों में दिस स्पोर्ट कैन आल्सो बिकम करियर प्रोफेशनली फॉर एथलीट्स एग्जैक्टली सर, वही मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, जैसे कि प्लान था 2020 में कुछ बहुत बड़ा इवेंट करने का, जिसमें एथलीट को एटलीस्ट सारा एथलीट नहीं होने से भी मिनिमम 40-50 एथलीट का तो लाइफ पूरा चेंज हो, हो सकता था इसी साल में। बट अभी कोविड के लिए थोड़ा डिले हो गया, मोस्ट प्रोबेबली 2021 में, और एंड ऑफ 2020 हम लोग को अच्छा न्यूज मिलेगा सारे एथलीट को कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इंडिया में, और उसमें बेनिफिट भी होगा एथलीट को, और उससे करियर भी बन सकता है एथलीट का, इंडियन एथलीट को। तो ऐसे okay ही है। and how do you see yourself 3 years down the line with the sport लाइक मैं अपना वेट क्लास में अपने आप को टॉप में देखना चाहता हूँ वर्ल्ड में। जैसे सबको पता है कि ज़्लोटी टोर इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर एनी आर्म रेसलर। तो ड्रीम है ऑलवेज हर एक एथलीट का ज़्लोटी टोर खेलना। तो ऐसे मेरा भी ड्रीम है, सिर्फ खेलना नहीं, उसमें प्लेस लेना। तो उसके लिए ही वर्क कर रहा हूँ अभी। very nice यही। मनोज मनोज बहुत मजा आया आपके साथ बात करके आई नो इट्स आवर फर्स्ट
session and you're the first because हमारी बुलडॉग की जर्नी में मुझे बताया गया कि you're one of those first few people who believed in making the sport become larger than just all the politics and all the old techniques of keeping the people hidden and only work for their own personal benefit rather than the bigger picture of the sport altogether. And I think we are very proud to say that you are an asset to the sport. You are definitely an example for the sport, and you have managed. You have not only kept the sport car flag flying, but you've also managed to keep our country proud, our fellow mates proud, and we are sure that you will add a lot of value in the coming days. I'm sure these are hard talks, and I'm sure we will like to invite you again on these talks. We want this COVID-19 restrictions to open up so that हम सब लोग मिलें, हम सब लोग वापस अपने vision and अपने plans के साथ अपने career को activate करें. But you are an inspiration to many athletes, and we are so proud to have you on our first show today. Please keep the name of the sport flying high. Thank you so much for joining us today, and we are looking forward to see you very soon on the stage representing our nation. Thank you so much, Manoj Devnath, for having yourself, and looking forward to see many more such fantastic achievements you will bring to the nation. Thank you. Thank you. Thanks, sir. And thank you, guys. I would like to say one thing, that this is just the beginning. We will improvise, and we will ensure that we will bring forward more new athletes with certain hard facts, inspirational, but also shocking. So stay tuned. Until then, follow us on our page. It's Bulldog Arm Wrestling. You can also connect with us at BCAI. And to know more, don't forget, you need to stay tuned. Looking forward to see you all soon. Leave your comments below. Leave your information below so that we can connect with you again. And coming very soon, another athlete who has made, I would say, dhamaka in the industry of arm wrestling sports. Till then, I'm your host, EJOG, signing you off. Take care, good luck, stay home, stay safe, stay healthy. Until then, good luck. Bye-bye.